नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात बेहतरीन सतह पर। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ मुलाकात में रूस के नायब वज़ीर आज़म का इतराम। दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म। नफरत को सिर्फ मोहब्बत ही से मिटाया जा सकता है। इंतखाबी जलसे से राहुल गांधी का खिताब। कहा, आरएसएस के लोग खुद डरे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मणिपुर में सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। जबरीबाम में तसादुम के दौरान 11 अस्करियत पसंद हलाक, एक जवान जख्मी। बड़े पैमाने पर असला और गोलाबारूद बरामद। शुमाली कश्मीर में आज एक एनकाउंटर फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। फायरिंग और जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स फैजान खान गिरफ्तार। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के नायब वज़ीर आज़म ने दिल्ली में तिजारत, इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफ़ती ताउन पर हिंदुस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के 25वें इजलास से खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दोनों मालिक के दरमियान ताउन पर रोशनी डाली और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, तिजारत में चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर अदायगियों और लॉजिस्टिक के सिलसिले में। इस सिलसिले में काबिल दीद पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी कुछ काम करना बाकी है। कनेक्टिविटी के सिलसिले में हमारी मुश्तरका कोशिशें हैं। उनका कहना था कि हम अपनी खुराक, तवानाई और सेहत की सलामती के लिए अहम ताउन पर भी बात करेंगे। Corridor, the Chennai-Vladivostok corridor and the northern sea route must go forward. We will also be discussing cooperation critical for our food, energy and health security. Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. Its supply of crude oil, coal and uranium are indeed important. Similarly, India's pharmaceutical industry has emerged as an affordable and reliable source for Russia. Looking ahead, we are also exploring the mobility of talent and skills. Customizing them for the Russian market has to be a shared enterprise. Excellency, I'm confident that we will achieve the trade target of $100 billion by 2030, well before that. In parallel, we will also take our partnership forward through the program of economic cooperation till 2030 that we hope to finalize soon. With those words, Excellency, I invite you to make your opening remarks. Уважаемый господин Джайшанкар, уважаемые коллеги, хотел бы искренне приветствовать всех участников юбилейного 25-го заседания нашей межправительственной комиссии. За долгие годы такой формат диалога доказал свою эффективность и стал ключевым механизмом развития взаимодействия по широкому спектру направлений. Фундаментом для этого служат прочные, проверенные временем узы дружбы между Россией и Индией. Отношения особо привилегированного стратегического партнерства подчеркивают регулярный характер двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. В текущем году лидеры наших стран дважды, как вы уже упомянули, встречались очно. Также мы продолжаем тесно сотрудничать на площадках других международных организаций. Прежде всего, это ООН и ШОС. В этой работе наше государство выступает источником позитивной созидательной силы. Играет важную роль в построении нового миропорядка, основанного на многополярности. Что касается непосредственно повестки дня нашей межправкомиссии, центральное место в ней занимают торгово-экономические связи. Прошедший вчера в Мумбаи бизнес-форум подтвердил растущий интерес предпринимательских кругов обеих стран к расширению взаимовыгодной кооперации. Предлагаю продолжить практику совмещения подобных деловых мероприятий с заседаниями наших комиссий. Также считаю необходимым всемерно
поощрять участие российских и इंडियन encourage राहुल गांधी ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन के ओट जहाद के नारे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आरएसएस के लोग खुद डरे हुए हैं और अवाम को डराना चाहते हैं। राहुल गांधी का कहना था कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से मिटाया जा सकता है और कांग्रेस मुल्क में यही काम कर रही है। मरकजी हुकूमत तब्दीली मजहब और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल एनजीओज पर शिकंजा कसने वाली है। इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि ऐसे किसी भी एनजीओज का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और जो तरक्की मुखालिफ सरगर्मियों, तब्दीली मजहब या बदनीयती के इरादे से एहतजाजी मुजाहरा भड़काने में शामिल हैं या फिर जिसके दहशतगर्द और शिद्दत पसंद ग्रुपों के साथ ताल्लुकात हैं। सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए नोटिस में वजारत ने कहा कि जिन NGO के गैर मुल्की चंदे लेने से समाजी या मजहबी खैर सगाली मुतासिर हो सकती है या जो जबरन तब्दीली मजहब में शामिल हैं, फॉरेन कंट्री कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और 2010 के तहत उनका रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ एक जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी मुल्क के आइन की किताब को रंग भी निशाना बना रही है। उनका कहना था कि लाल रंग की ये किताब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खुद सर जमहूरिया को पेश की थी, मगर अफसोस कि आज कांग्रेसी कायदीन ये किताब लेकर निकलते हैं तो कहते हैं कि ये लाल रंग नक्सलाइट्स का है। जब राहुल गांधी अपने भाषण में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रेड कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, हम भी यही दिखाते हैं, लेकिन मोदी जी ने ये बोला, शाह ने ये बोला, ये कॉन्स्टिट्यूशन नक्सलवादियों का है, ये रंग उनका है। अरे ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बाद में बताएंगे। तो ये नक्सलवादियों का है, उन्होंने बोला। अरे भाई अंदर क्या है, इसको ऐसा पकड़ो तुम, अंदर क्या है आप पढ़े नहीं, बाहर से बोल रहे। ये कोरे कागज का राहुल गांधी ने सबको बता रहा है, ये देखो इसमें पढ़ो, अगर एक किताब खरीद के दो उनको, भेजो मोदी जी को, पोस्ट से भेजो। ये छोटी किताब इसलिए वकील लोग रखते, सभी रखते कि कहीं भी गए तो साथ में रहे। इसकी भी मजाक उड़ाए उन्होंने। और जो हमको अर्बन नक्सलाइट कहने वाले, मोदी खुद ये किताब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है। ये नक्सलवादी है फिर? देखिए ये जो कोविंद जी को प्रेजेंट कर रहे हैं लाल किताब, यही किताब, और हमको बोलते हैं ये नक्सलाइट्स की रंग है, उनकी रंग। अरे ये काला, ये तो ये जो कुमकुम रंग है, ये रंग तो शुभ होता है। महिलाएं कुमकुम पहनती है, ये कलर होता है। सिंदूर अपने क्या कहेंगे, आपके पास क्या कहते हैं, हाँ मांगल, ये अपने औरतें पूरे उसी से भर देते हैं सिंदूर से। तो उसको ऐसा, यानी इतनी चिल्लर बातें वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कितने झूठ बोलते हैं मोदी जी, इसीलिए मैं उनको बोला ये झूठों का सरदार है। मणिपुर में सीआरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेरीबाम में 11 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। इस कार्रवाई में एक फौजी जवान के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सीआरपीएफ जराये के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मणिपुर में गुज़िश्ता 3 दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़बरदस्त तलाशी मुहिम चलाई हुई है। मणिपुर की पहाड़ी और घाटी के अजला में तलाशी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के कई असला, गोला बारूद और आईडी जब्त किए गए हैं। आसाम राइफल्स ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी कि हफ्ते को आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की मुश्तरका टीम ने एक तलाशी मुहिम चलाई,
जिसके तहत चुराचंदपुर जिले के एक जंगल से गोला बारूद, राइफल्स और दीगर जंगी अशिया जब्त किए गए। शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान झड़प शुरू हुई। फौज की चिनार कोर ने मंगल को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने पर फौज और पुलिस ने बांडीपुरा के नागमर्ग को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। कबलजी हुक्काम ने बताया कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नागमर्ग इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि चैलेंज किए जाने पर मशकूक मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान एनकाउंटर छिड़ गया। बताया जाता है कि मुहासरे में 2 से 3 मिलिटेंट्स फंसे हुए हैं। काबिल जिक्र है कि ये गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान शुमाली कश्मीर में छिड़ने वाला 5वां एनकाउंटर है। इससे पहले इस तरह के तसादुम में 5 मिलिटेंट्स मारे गए। बारामूला में फौज की भर्ती के लिए एक कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हज़ारों नौजवानों ने शिरकत की। बारामूला जैसे बदनाम ज़माना दहशतगर्दी का मरकज़ कहा जाता था, अब नौजवानों पर पुरजोश उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद नजर आई। एक उम्मीदवार ने शिरकत से पहले जोश व खरोश का इजहार किया और अपने अज़ाइम का इंकिशाफ किया। भर्ती कैंप का एहतमाम 161 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ने किया है। का रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनका डिसिप्लिन देख के काफ़ी जज्बा आया था फौज में जाने का। और इस वक्त अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। और सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पीस काफ़ी डिस्टर्ब है यहाँ पे, चाहे वो कोई भी कर रहा है। हमने कभी भी नहीं चाहा है, खासकर कश्मीर के युवा ने कभी नहीं चाहा है कि यहाँ का पीस डिस्टर्ब हो। यहाँ पे पीस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा ही नुकसान है। अगर हम बात करें, जब भी यहाँ पे पीस यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है तो यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट रैली नहीं हो रही है। चाहे हम किसी भी बात करें, चाहे हम बेल्ट फोर्स की बात करें या सिविल की बात करें, कोई भी रैली नहीं होती है। तो हमें इंडियन आर्मी के काफ़ी शुक्रगुजार है जिनने यहाँ पे 161 टीए में रिक्रूटमेंट रैली निकाली है। तो यहाँ पे नौजवान काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम एक बार फिर इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ऐसी रैली निकाली और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में पुलिस ने मरकजी शूटर शिव कुमार गौतम के उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच से गिरफ्तार किया। तफ्तीश में गौतम ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसे बाबा सिद्दीकी या उनके बेटे जीशान सिद्दीकी में से किसी एक को कत्ल करने का टास्क दिया था। कत्ल के बाद उसने नेपाल फरार होने का मंसूबा बनाया था, ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके इसे गिरफ्तार कर लिया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। अब इस धमकी देने वाले शख्स फैज़ान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को सुबह के वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस फैज़ान खान को गिरफ्तार करने के बाद उसके लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए आज सुबह 11 बजे रायपुर अदालत में पेश किया। वहां से फ़ौरन बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है, जहां आगे की कार्रवाई होगी। खान ने कहा था कि वो 14 नवंबर को अपना बयान देने के लिए मुंबई आएगा, ताहम उसे पिछले 2 दिनों से धमकियां मिल रही थी। इसलिए उसने मुंबई कमिश्नर को एक ख़त लिखा और अपनी हिफाजत का जवाब पेश करते हुए दरख्वास्त की कि वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन बयान देगा। मुंबई पुलिस को फैज़ान के जवाब से इत्मीनान नहीं हुआ और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फैज़ान खान ने कहा था कि वो 14 नवंबर को अपना बयान देने के लिए मुंबई आएगा, ताहम इसे पिछले 2 दिनों से धमकियां मिल रही हैं। इसलिए उसने मुंबई कमिश्नर को एक ख़त लिखा अपनी जवाब पेश करने के लिए, बल्कि ऑनलाइन बयान देगा, और इस तरह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 90 की दहाई में टीवी पर तहलका मचाने वाला प्रोग्राम शक्तिमान एक बार फिर टीवी की जीनत बनने जा रहा है। शक्तिमान के किरदार के लिए मशहूर मुकेश कुमार इस नई सीरीज़ में शक्तिमान का रोल अदा करेंगे। दोबारा मौका मिलने पर मसरत का इजहार करते हुए इन्होंने कहा कि ये मेरे अंदर का लिबास है। उनका कहना था कि शक्तिमान मैंने अच्छा काम किया है। इन्होंने कहा कि अदाकारी एतमाद का दोबारा नाम है। मैं दोबारा शक्तिमान बनने से ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा काम आवाम तक पहुँचना चाहिए। उनका कहना है कि हम 2027 तक ये प्रोग्राम चलाएंगे, क्योंकि आज की नस्ल अंधाधुंध भाग रही है। इन्हें रोक कर सांस लेने को कहा जाएगा। आपको पूरा ब्रह्मांड मिलेगा आपको अपने शरीर के अंदर। ये छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी बात मैं इतना ही कहता हूँ, होता है अब जब आदमी को अपना ज्ञान, कहने को तो हम कह गए शक्तिमान में, लेकिन आज जब मैं और भी मैंने किताबें पढ़ी हैं और भी मैं कुछ मेडिटेशन भी कर चुका हूँ, मुझे महसूस हुआ है कि ज्ञान क्या, जब हम कहते होता है आदमी को अपना ज्ञान, इसका मतलब ये नहीं है कि भी मुझे ज्ञान हुआ कि मैं मुकेश खन्ना हूँ, मुझे ज्ञान हुआ कि मैं शक्तिमान हूँ, मुझे ज्ञान हुआ कि भीष्म पितामह। नहीं साहब, वो कुछ नहीं है, वो आप नहीं है, आप अंदर की सोल है। वो छोटी सी चीज़ अगर आप पहचान जाओगे तो आप
ना आपको सर दर्द होगा, ना आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, ना आपको बीमारी सताएगी, आप खुद ब खुद स्ट्रांग बनोगे। सो मकसद लाने का शक्तिमान यही है। देखिए, एक हिमाकत की है मैंने, मैं कह सकता हूँ धृष्टता की है मैंने। मैं ये गाना किसी बड़े सिंगर से, सब मेरे दोस्त हैं, मैंने शान से भी गाने गवाए हैं 2। मेरे दिमाग में शान भी थे, मेरे दिमाग में इवन अच्छे 2-4 सिंगर्स हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस गाने को अगर मैं गाऊंगा तो शायद पब्लिक कन्विंस होएगी। और मैंने ये धृष्टता ली और फिर मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर से भी बात की। फिर अपनी टूटी फूटी आवाज़ को संवारते हुए मैंने उसको जोड़ा और जोड़ते जोड़ते एक अच्छा गाना बन के निकला है। क्योंकि मैं बाथरूम में तो गाया करता था, लेकिन पहली बार मैंने माइक के सामने खड़े होकर गाया है। और मैं समझता हूँ गाना क्यों, अगर आप मुझे पूछो गाना क्यों। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और। हिंदुस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात बेहतरीन सतह पर। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ मुलाकात में रूस के नायब वज़ीर आज़म का इकराम। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म। नफरत को सिर्फ मोहब्बत ही से मिटाया जा सकता है। इंतखाबी जलसे से राहुल गांधी का खिताब। कहा, आरएसएस के लोग खुद डरे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मणिपुर में सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। जबरीबाम में तसादुम के दौरान 11 अस्करियत पसंद हलाक, 1 जवान जख्मी। बड़े पैमाने पर असला और गोलाबारूद बरामद। शुमाली कश्मीर में आज एक एनकाउंटर, फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। फायरिंग और जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स फैजान खान गिरफ्तार। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।